Good morning and welcome to the Whiteboard Academy. So, in today's class, we will be going to discuss some of the important questions regarding our polity section. So, without any further ado, let's start our today's session. The very first question is regarding the central sector scheme, and it is quite an easy one. These are fully funded by the union government, yes, that's why central sector scheme, and implemented by state government machinery. By central sector scheme है. So there are two kinds of scheme, the central sector scheme and सेंट्रली स्पॉन्सर्ड. इस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में दो टाइप के आ जाते हैं, एक तो 60-40 रूल और एक 90-10 रूल. ये शायद से हिमालयन और नॉर्थ स्टेट्स के लिए है, एंड दिस इज़ फॉर जनरल स्टेट्स. In the centrally sponsored schemes, mostly the subjects will be related to the state list. Understood? And state and center both will implement such kind of centrally sponsored schemes. But in this particular scheme, mostly nahi, always the union list subjects will be chosen as the priority. That's why central sector schemes, and 100% it is funded by center. These are fully funded by the union government, yes, and implemented by the state government, no, it is implemented by the center. These are formulated in subjects from the state list. अभी तो बताया union list से. So this is incorrect, this is also incorrect, so correct answer is neither one and not two. Centrally sponsored schemes are of three types: optional, core of the core schemes, and एक और थी कोर स्कीम्स है शायद से. ऐसे ही कोई तीन डिफरेंसेस है, आप देख लेना एक बार जाके ना. The next question is regarding the Right to Information Act. 2005 में आया था सबसे पहले. तो एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी. एक बार थोड़ा अकल लगाइए, ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा हो तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और आपने अभी तक पढ़ लिया होगा. इफ़ यू आर अ नॉट अ नूबी एस्पायरेंट बट अ परफेक्ट एस्पायरेंट, देन आपके सामने ये टर्म आ जाती, इतना हम सब पढ़ते हैं. तो ये तो बिल्कुल नहीं है. आई थिंक 10 या कुछ ऐसी लैंग्वेज है जिसमें ये हो सकता है. एप्लीकेशन कैन बी हैंड रिटन और टाइप्ड, येस. हमारी थोड़ी थोड़ी तो नहीं पर अच्छी खासी थोड़ी गरीबी कंट्री है, तो ये सारी चीज़ें अलाउड करनी ही पड़ेगी. तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू पॉइंट से सोचा कीजिए, है ना. मतलब जो हम पढ़ते हैं, द थिंग्स वी आर रीडिंग, डैट इज़ ओके, वी डैट इज़ अ सेपरेट डिपार्टमेंट. बट थिंक लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर, कि ये अगर चीज़ें होती हैं तो दिक्कत आ सकती है. ठीक है. In the normal course, information to an applicant is to be supplied within 90 days. Now think like an administrator, a person, और ये citizen ही apply कर सकते हैं, the citizens or the companies that are incorporated in India, those who can apply for RTI. If a RTI has been applied by a citizen and the government is responding to that RTI in 3 months, ये आपको थोड़ा थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? 3 मंथ्स एक इन्फॉर्मेशन के लिए इंतज़ार तो नहीं. 3 मंथ्स तो बिल्कुल नहीं है. दिस इज़ 30 days और 1 month. अंडरस्टूड. और कोई जान मान की कोई हानि होने वाली है, ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत है, तो आई थिंक 3 days ही है ये, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट? तो भाई ये भी करेक्ट नहीं है. 1 and 3 आर नॉट करेक्ट. NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल. It is an autonomous body under the UGC responsible for assessing the quality of higher educational institutions in India. Yeah, higher educational institution, universities को देखती है. ठीक है. Accreditation by NAAC is mandatory. No, it is not mandatory. It is voluntary. और वॉलेंटरी में भी एक कंडीशन है. दिस कंडीशन करंटली ओनली इंस्टीट्यूट्स डेट आर एटलीस्ट 6 years old और फ्रॉम वेयर एटलीस्ट 2 batches ऑफ स्टूडेंट्स हैव ग्रेजुएटेड कैन अप्लाई फॉर एक्रेडिटेशन. इसका मतलब 2 batches ऑफ स्टूडेंट मतलब 4 + 4 years, 8 years, है ना. सो दिस इज़ करेक्ट. 1 and 3 आर करेक्ट. हमको पूछा गया है एन के ऊपर, और ये करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है मोस्टली, क्योंकि अभी अभी ये हमारी लिमिट 20% कर दिया है कि एन कैन यूज़ द फॉरेन फंड्स अप टू द अमाउंट ऑफ 20% फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस. पब्लिक सर्वेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिसीविंग फॉरेन फंड्स इन इंडिया. हाँ जी, बहुत चीज़ों को है ये. आई थिंक सिटिंग MP MLA को है, SC and SC जजेस को है, तो बहुत सारी एक लिस्ट है, तो उसमें पब्लिक सर्वेंट्स भी आते हैं. सो दिस इज़ इनकरेक्ट. 50% बोला गया. वी हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर ओनली 2. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बोला गया, और
इसमें शायद से अमेंडमेंट हुई है 2020 में, जहाँ तक मुझे पता है। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी बनाई है, ये भी मुझे याद है। थोड़े दिन पहले की ही न्यूज़ थी, अमूल अमूल है या कौन सी है, कोई तो कंपनी है, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, जिसकी डेयरी मिल्क है। डेयरी मिल्क अब किसकी है बता दो। तो डेयरी मिल्क में देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ वॉर्म्स, और ऐसे नहीं कहीं ठेले से, अच्छे से मॉल्स में, उसमें वो जो है ना आलमंड एंड नट है शायद से, तो उसमें ये चीज़ पाई गई है, वॉर्म्स। ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज एनेक्टेड इन 1986। अच्छा, अभी एक और चीज़ मेरे को याद आ गई, इसी बॉडी ने हड़काया है किसको, पतंजलि को। इसने तो नहीं, पर कोर्ट्स ने हड़काया पतंजलि को, डेट दे आर प्रोड्यूसिंग डिसीविंग एक्ट्स एड्स, दे आर क्लेमिंग सर्टेन अननेचुरल थिंग्स इन दीज पर्टिकुलर एड्स, डेट ये खा लीजिए आपका कैंसर सही हो जाएगा। तो ये सारी चीज़। सो ये आप GS पेपर 4 में भी यूज़ कर सकते हो, GS 3 में भी यूज़ कर सकते हो, तो देख लेना कहाँ यूज़ करना है आपको। अंडर द एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज एंजॉयड बाय कंज्यूमर। सो राइट टू इन्फॉर्मेशन, येस। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू रिप्रेजेंटेशन, राइट टू सेफ्टी। आप ये बोलोगे राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, हाँ जी, आपके पैकेट्स के पीछे पूरा न्यूट्रिएंट क्वांटिटी आती है, तो वही चीज़ है ये, कि कितना ट्रांस फैट है, कितना फैटी एसिड्स है, ये सब। सो ऑल 4। रिमूवल ऑफ UPSC बाई प्रेजिडेंट विल अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ UPSC, यही सबसे पहला चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी चीज़ है। राज्यसभा अंडर 312 कैन इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, बाई स्पेशल मेजॉरिटी। ऐसे याद आ रहा था तो बता दिया मैंने। स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मोर देन 50% मेंबरशिप ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस। टोटल मेंबर्स है प्रेजेंट एंड वोटिंग, शायद से टोटल मेंबर्स है, एक बार देख लेना, ये चीज़ देख लेना, ये पता है मुझे प्रेजेंट एंड वोटिंग है। द प्रेजिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन ऑफ द UPSC ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर, यस। और एक और चीज़ क्या है, द प्रेजिडेंट विल गिव दिस पर्टिकुलर resolution matter to the Supreme Court. Supreme Court will inquire into these allegations of misbehavior. Supreme Court will advise President. This advice is binding on President. तो ये सारी छोटी बट मोटी चीज़ें हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट डिफाइंड द टर्म मिसबिहेवियर, नहीं जी, उसने डिफाइन करी है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मैंने पिछले क्लास में भी आपको अच्छे से बताया था, वापस क्वेश्चन आ चुका है, बट ही इज़ आस्किंग अबाउट which of the following is not the reason behind its adoption in the Lok Sabha election. Proportional representation is a complicated system. Indeed, it is a complicated system. The entire election system of first past the post is extremely simple and understandable. Yes. FPTP is a constituency based system and representative is responsible for one locality. बिल्कुल आपको पता होगा, हमको जो पहले न्यू कमर्स हैं उनको लगता है कि ये स्टेट है, उसमें हमारे पास 6 डिस्ट्रिक्ट है। सो दीज आर 6 कॉन्स्टिट्यूंसी। ऐसा नहीं है, पॉपुलेशन वाइज डिवाइड होती है, मतलब दिस कैन बी वन कॉन्स्टिट्यूंसी, दिस कैन बी अनदर, दिस कैन बी वन कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है, फिर दिस कैन बी अनदर, दिस कैन बी अनदर। सो ये दोनों इक्वल चीज़ नहीं है, डिस्ट्रिक्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूंसीज। सो येस, FPTP में जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वहाँ से जो रिप्रेजेंटेटिव चुन के आता है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी लोकेलिटी की। सो दिस इज़ इनवेरेंटली इनकरेक्ट। FPTP voters are often asked to choose a party and the representatives are elected on the basis of party list. यही चीज़ गलत हो जाती है। In the first past the post system, the members or the individuals stand in elections. So in the Lok Sabha elections, you are not voting for a party, you are voting for the election candidate. Understood? And that's why it is very important to know the antecedents, educational and criminal, of the candidate as well as his or her family members, because there is no party involved on the theoretical lines. Of course practical lines में तो आपको पता है कौन सा कैंडिडेट कौन सी पार्टी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द CVC, कब आया था, CVC एक्ट के अंडर आया था जहाँ तक याद है। कौन सा एक्ट है ये, 2002 का है शायद से, पता नहीं, पर देख लेना, मेरे को तो यही याद आ रहा है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, नहीं, CVC एक्ट अलग ही एक्ट है, और CVC के एक्ट से ही आई थिंक ED का डायरेक्टर चुना जाता है। तो दिस इज ऑल्सो अनदर स्टेटमेंट।
द कमेटी, अब देखो स्टेटमेंट वन गलत हो गई, अगर तो वन गलत है तो इस खुद ही आंसर आ गया हमारा, पर द कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन हेडेड बाय के संथानम हैज़ रिकमेंडेड द फॉर्मेशन, तो दिस इज करेक्ट। NDMA, व्हेन आई वेंट टू द UPSC इंटरव्यू, तो सारी चीज़ मेरे इसी में से पूछ ली गई थी, अंडरस्टूड। तो जो भी हमारा डेफ होता है उसमें से आई थिंक 10% ही पूछा गया था, और सारी चीज़ जो मेरी नॉलेज है उसके बारे में पूछ ली गई थी, रैंडम नॉलेज। सो NDMA एक्ट है हमारे पास, 2005 में बना है। चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। इसके अंदर दो चीज़ और है, नेशनल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है, नेशनल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फंड बना रखा है, 2005 में ही है। हु हेड्स द डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एट स्टेट लेवल, तो हमारा IAS होता है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो हेड करता है, ओवरऑल सुपरवाइज करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में। With reference to scheduled tribes, consider the following statements. The Constitution does not define the criteria for recognition of STs, and yes, the President resolution will give the names of the STs in our country from time to time. According to Article 342 of the Constitution, STs are tribes declared by the Parliament, अभी तो बोला, President through a public notification. Punjab and Haryana are the only two states which do not have any STs. It is indeed correct. So this is the answer. यहीं तक रखते हैं आज की हमारी डिस्कशन। अगले लेक्चर में और 10 क्वेश्चन लाएंगे और उनका हम डाइसेक्शन कर देंगे। होप सो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।